everyone, and I hope you all are doing great. I'm your host Alicia, and I welcome you to another episode of Chef Special. On this show, आपको पता होगा हम जाते हैं 5-star restaurants and hotels, and we learn amazing signature recipes by their chefs. And sometimes we even talk to people who all have a hand in bringing these amazing dishes and amenities in front of us. आज हम आए हुए हैं Ramada Plaza पे, which is really close to the airport. So whenever you want to just have a break, you can just get off your flight and come right here. More than a hotel, they say this place is a mini resort. It's a perfect place for getaways. So let's go and talk to some people who have a hand in bringing this place together and for its success. Let's go. Assalamu alaikum, sir. How are you doing today? I'm very well, fine, thank you. This is Mr. Farooq Islam, who is a senior front office manager, और वो हमें थोड़ा बताएंगे about Ramada and its qualities and what all they have to offer us. So please, sir, tell us a little about what Ramada Basically, has. Ramada has a 5-star brand, okay, and it belongs to around 228 rooms. And we have a different category of rooms. Right now, we are standing at the chalet. Okay. You have a look at around the chalet. There's a nice rooms. People, they are coming to stay there with their family, and we have a services of the 5-star also. Okay. And this is the open front chalet area. Yeah, open front chalet area also. Already have, although we have in the buildings also for second, third floor, Acha. and we have a covered area of the chalet also. Okay. Although we have also this all area has to be covered with the glass very soon. Okay. So they're renovating. Renovating. We are renovating. Right now. Okay. Right now. And I love how this chalet is overlooking the restaurant as well, which is Yushi, जहाँ से हम अभी निकल कर आए हैं. And tell us a little of the amenities here in the hotels. The hotel normally we have a rooms amenities, okay, and we have we give the welcome fruit basket, welcome drinks, or although we have a different type of category. If you go into the rooms, you can find it different type of bathroom amenities, and we have a new renovated rooms as well also. What about spa and swimming facilities and what? We do have a spa and swimming facilities at the pool site. We have a pool, sauna and jacuzzi. Okay. And one special thing, we have a warm pool. Okay. You find the heated pool. Heated pool, and especially अभी winters आने वाले हैं, and heated pool is must when people are staying. Also बताएं यहाँ पे सबसे ज़्यादा internationally कौन से ethnicity के लोग आते हैं? Which normally people, they are coming from the Europe side. Okay. And they are coming from the Turkish side. You said Europe also. Okay. We have a Turkmenistan, Uzbekistan. Okay. And normally we have an aviation cruise also coming. Okay, so a lot of nationalities mixed together, Yes, just coming together. Amazing. Because this is the best thing is that we are close to the pool. We're close to the airport, sorry. Yeah. So that's why. अच्छा, तो जब भी यहाँ से आप airport से उतरे and you want to get away, immediately Yeah. just come into Ramada and you'll have a mini getaway immediately. And this property is the number of one in Pakistan, the land property. Land पे इतनी बड़ी कोई property नहीं है. अच्छा. We have a big Shalimar lawn also. Okay. Although the people, they are coming and having a cricket match and this type of things like that. All right, we're going to check out Ramada and we're going to explore more with Mr. Farooq Islam. Thank you so much. Thank you. हम आ गए हैं यूशी पे. This is in Ramada Plaza, like I told you guys. हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव शेफ राजा अब्दुल्ला से. How are you, sir? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक. आप प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स को आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं आज. आज हम बनाएंगे हमारा जो सिग्नेचर आइटम है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायरल फिश. स्क्वायरल फिश, इतना Yeah. यूनिक नाम है. ये आपने नाम क्यों चूज किया है? क्योंकि फिश भी ऐसी है ना. स्क्वायरल फिश है. स्क्वायरल फिश भी ऐसी है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है और ये सिचुआन में बहुत फेमस है। और आपको तो पता है कि यूशी रेस्टोरेंट जो है वो
सिचुआन कुजीन, ओके ऑथेंटिक सिचुआन कुजीन। या अगर हमारे व्यूवर्स कहीं गए होंगे चाइना में, तो जो चाइना से फ्लाइट जाती है चंदू एयरपोर्ट, तो ये सिचुआन प्रोविंस है और वहाँ का खाना बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और अच्छा होता है। यमी। हमने बहुत कम फिश ट्राई की है इस शो पे, सो आई एम रियली एक्साइटेड। हमें बोला गया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स। शेफ राजा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमें रमादा प्लाजा के अंदर कितने रेस्टोरेंट्स हैं? रमादा में 3 से 4 रेस्टोरेंट है हमारे, जिसमें लातरास है जो बुफे रेस्टोरेंट है, उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी एंड डिनर। उसके अलावा हमारा एक पूल साइड रेस्टोरेंट है और फिर हमारा एक ओपरा कैफ़े के नाम से है लॉबी में, ओके और एक यूशी। तो ये 4 रेस्टोरेंट्स हमारे पास और मुख्तलिफ कुजीन्स है। जैसे यूशी है तो इसमें चाइनीज़ है, और पूल साइड है तो वहाँ पे ऑथेंटिक जो हमारा ट्रेडिशनल बारबेक्यू स्टेक्स वगैरह वो सर्व होती हैं। और एक बुफे रेस्टोरेंट है जिसमें मैंने कहा कि लातरास जिसका नाम है, जिसमें हम ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर उधर सर्व करते हैं। और एक हमारा ओपरा कैफ़े जहाँ पे केक, पेस्ट्री और स्नैक्स आइटम होते हैं। और ये सारे रेस्टोरेंट्स को आप हेड करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आपका फेवरेट डिश कौन सी है इस रेस्टोरेंट में? मेरी तो पूरी रेसिपियाँ जितनी हैं सब मेरी फेवरेट है। आपने सारी डिज़ाइन की हैं रेसिपीज? तमाम जो मेरी फेवरेट्स हैं वो हमने अपने मेन्यू में अपने गेस्ट के लिए रखी हुई है। Okay, interesting. Okay, so we can start with the squirrel fish now and let's move on to that. All right, we're moving to the squirrel fish recipe and Chef Raja is going to tell us how to make it. जी, तो ये हमने ली है ग्रुपर। Grouper. ग्रुपर जो है बहुत मशहूर फिश है इन द मिडल ईस्ट, और इसको हम हामूर भी कहते हैं। Okay. थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो हामूर कहेंगे, छोटी है तो बेचारी ग्रुपर कहलाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ग्रुपर और अरबिक में हामूर। आप चाहें तो इसमें कोई और फिश भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रेड स्नैपर, हीरा हो गई, मुश्का हो गई, वो और सिंपल तरीका है, इतना वो नहीं है। ये जैसे इसकी धारियाँ आ रही हैं तो हमने यहाँ पे इसको लेके और स्किन तक कटिंग मारनी है। ये भी आपने 2 फिले बनाए हुए हैं ना इसके? ये 2 फिले लिए हैं एक फिश ठीक है। के, इस तरीके से। ये जो आपने अभी नाम लिए थे, ये आर फेमस इन अरब और इन अनदर लैंग्वेज? ग्रुपर जो है फेमस इन द मिडल ईस्ट, और बाकी फिशेज हैं जैसे मुश्का है। मुश्का तो और ओरल वर्ड मिलती है, मगर पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ की जाती है। कहीं पे उसका नाम कोई और होता है दूसरी कंट्रीज़ में, मगर आपको मुश्का भी मिल जाएगी। और उसके फिले इस तरीके से डीबोन करवा के ना, इस तरीके से जो है उसमें हमें ये ऐसे कट मारने हैं ताकि वो स्किन तक जाए। ये ठीक है जी। ओके, ताकि जो भी हम आई थिंक मैरिनेशन डालेंगे अंदर तक जाए ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे टेपर रखने के बाद ये स्किन तक जाएगी यूँ, ये बिल्कुल ऐसे। ओके, फाइन कटिंग प्रॉपर। और ये स्किन तक जाना है। वेरी इजी कि आप पूरे स्किन तक इसको काट सकें, लेकिन ट्राई नॉट टू डू दैट। कोशिश करें कि स्किन ना कटे इसकी, बिल्कुल। और इस तरीके से ओके, कोशिश कीजिएगा कि जब आप काट रहे हो तो पूरे स्किन तक ना कटे, बिकॉज़ इट्स वेरी इजी टू डू दैट। स्किन तक कटे मगर स्किन ना कटे। बिल्कुल। शेफ, आप ये कब से कर रहे हैं काम? मुझे तो मेरे ख्याल में आपकी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इतना सीखने को मिलेगा आज हमें शेफ से। या मोर देन 35 इयर्स। ओके। इंडस्ट्री जो है, पहले तो ये होता था कि बावर्ची और किचन, फिर उसके बाद शेफ्स, ठीक है जी। तो वो जो शेफ्स की वजह से वो होके एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो गई है। अब वो चीज़ ओपन हैंड से हम कभी नहीं बना सकते। हमें जो है केप, हमें अपने जो है सर ढांपना है, बाल न गिर जाए, हमें अपने मुंह पे जो है मास्क लगाना है ताकि कोई ऐसे जरासीम हमारे मुंह से निकल के खाने में न पड़े। और इसी तरीके से सर्विंग भी इसी तरीके से होती है। और ये इतनी बूमिंग कर रही है, वो नई नई चीज़ें आ रही हैं। देखें या ये इस तरीके से जो है इसके ये ग्रुपर कटे हैं ना, ये इधर से ये ग्रुप कटे हुए हैं, ये देखें अलग अलग। अब इसको हम डालेंगे ठंडे पानी में। कोल्ड बाथ का क्या, व्हाट इज द पॉइंट? और कोल्ड इसमें जो भी चीज़ होती है इसको थोड़ा सा खोल देती है, अकड़ा देती है। अच्छा। थोड़ा सा इसमें मतलब एक एक ग्रुप अलग हो जाएगा अगर इसको सादा पानी में ना
वो स्टिफनेस देती है कि जो भी अब हम जैसे जी, अगर उसको बिल्कुल। फोल्ड करेंगे तो वो होल्ड कर लेगा। बिल्कुल। अब Okay. देखें, हाँ अभी मैं हाथ पे उठाऊंगा, हाँ देखें, ये देखें कैसे आ गया। वेरी नाइस। अब इस पे हमने इसको थोड़ा सा पानी खुश्क करना है इसका हल्का सा, और फिर हम इसको करेंगे कोट। फिश अंदर से हमेशा इतनी इंटरेस्टिंग होती है, उसके हमेशा कलर्स डिफरेंट होते हैं हाँ हाँ, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। और सबसे हेल्दी भी है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। हैज ऑल द ओमेगा फैटी एसिड्स, यू कैन ईट इट एवरी डे। अच्छा जी, हम अब इसको जो है तो उसको जो फैट काटती है, अभी ये इसमें हम थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे वाइट पेपर्स, जो हमें अपना टेस्ट देता है, और सिचुआन में भी थोड़ा सा स्पाइसीज होती है। ऐसे करके हमने इसको ये मल दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि इसमें भी थोड़े से पेपर्स, ओके, और ये सॉल्ट, ओके, ये कॉर्नफ्लावर है? ये कॉर्नफ्लोर है। Okay. कॉर्नफ्लोर में हमने सॉल्ट डाला, पेपर डाले, और ये थोड़ा सा सॉल्ट इस पे भी स्प्रिंकल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, ये थोड़ी सी जगह गीली है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको इस तरीके से किया, और उसके बाद हम एक कोई पेपर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चले जी। इसमें एग्स हैं, ऑलरेडी बीटन अप एग्स। हाँ, ये अंडे जो है उसको बीट कर ले, या आप बीटन अंडे यूज़ करें, और हमने इसको डिप करना है इसमें, पूरे अंडे को जो है पूरा इसके अंदर Yeah. डिप करके एंड देन यू मेक द बैटर। अच्छी तरह इसको Okay. लगाएं। अब इस पे हम इसकी डस्टिंग करेंगे इस मटेरियल की, ठीक है, ओके। ओके। चलिए, तो ये जो अभी आपने सीजनिंग की है, दिस इज द ओनली सीजनिंग है ना? या ओके, ये सीजनिंग थी। क्योंकि सॉस हमेशा अलग से बनता है, आई थिंक। सॉस इसका अलग से बनेगा, बिल्कुल। जो इसके ऊपर जाएगा इसके ग्रुप्स के अंदर तक। आई लव इसके कट्स, इतना मजे का अंदर सिट हो रहा है इसके अंदर बैटर। So I think every individual cut will get some batter on it and be very crispy fried now, I'm thinking. So it's gonna be very tasty. और ये बहुत ही क्रिस्पी होगी। And ये आपकी सबसे सेलिंग डिश है इस जी menu हाँ, पे? ये मोस्ट सेलिंग और हॉट सेलिंग बल्कि कहें, हमारा सिग्नेचर आइटम है ये, क्योंकि आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है जी। हाँ, अब ये आ गई। ओके, अच्छा जी, अब ये का एक स्टेप ये है कि आपने ये स्किन से इसको, स्किन इसकी काफ़ी होती है सख्त, ओके। इसलिए ये स्क्वायरल फिश है, बिकॉज इसका एक बहुत यूनिक सा भी जी हाँ। स्टाइल और शेप बनेगा, ऑलमोस्ट लाइक कालामारी, है ना? नहीं, कालामारी तो अलग चीज़ है। ऑफ कोर्स, लेकिन वो जिस तरह इसके कट्स होते हैं कालामारी पे भी। अच्छा, ओके। ये एक बहुत मजे का स्टाइल बनाया है इनने, व्हिच ट्रांसेंड्स टू इट्स नेम, स्क्वायरल फिश, एंड वी आर गोना सी जब फ्राई होके निकलता है कि क्या फॉर्म लेता है वो। दिस इज गोइंग टू बी इन डीप फ्राई, वेरी नाइस। और शेफ, इसको कितने मिनट हम फ्राई करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में जो है ना। वाओ, लुक एट दैट। अभी पापड़ लग रही है, पापड़ फिश लग रही है बट जी हाँ, बड़ी क्रिस्पी हो जाएगी ये वेरी नाइस। 2 से 3 मिनट में। और फिर उसके बाद इसकी सॉस बनाएंगे और उस पर इसको प्योर कर देंगे। ऑलराइट। तो इतना टाइम तो वैसे अंदाजन कितना टाइम फिश जितना को फिश फ्राई में देना लगता है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 ओके, मिनट। लुक एट दैट यू गाइस। और ये कितने ग्राम्स ऑफ फिश है जो एक सर्विंग में ये जाता है? तकरीबन 300 से 350 ग्राम है। 350 ग्राम। आप डिसाइड कैसे करते हैं कि एक एक सर्विंग पे एक इंसान को कितना ग्राम्स देने चाहिए फूड के, या हाउ डू यू जस्टिफाई मीट जो है वो एवरेज, जो वर्ल्ड वाइड जो एवरेज होता है 250 से 300 ग्राम मीट लेता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वेजिटेबल्स होती हैं, साइड सर्विंग होती है, तो वो चीज़ें काउंट करती हैं। और जो स्टैंडर्ड है वो मीट का, जैसे अब कोई स्टेक लेता है तो एक ही स्टेक खाएगा जी। तो वो उसका भी 300 ग्राम्स होती है। अच्छा।
तो हम जो है ना 300 ग्राम से अला कार्ट में 300 ग्राम करते हैं, और जो पार्टी वगैरह होते हैं तो खाते उतना है मगर थोड़ा ज़ाया भी होते हैं, तो 200-250 ग्राम जो है ना उसका ज़ाया का आंसर रखते हैं। तो 500-550 पे जो है तकरीबन हमारी ग्रामेज होती है। आप लोग कभी कभार लोगों की या इंसान की कैलोरी इनटेक के हिसाब से भी उसको करते हैं ग्रामेज? हम ना, हमारे पास मेन्यू जो है वो है, सेट मेन्यू है हमारे रेस्टोरेंट्स में, जिसमें अगर कोई ऐसा गेस्ट आता है जो कहता है मुझे लो कैलोरीज फूड चाहिए तो हम लो कैलोरीज फूड देते हैं। ये अभी फ्राई हो रही है और जैसे ही हम इसको निकालेंगे हम जाएंगे सॉस की तरफ, विच इज़ द सेचुआन सॉस, जैसे शेफ ने बताया था हमें। इसकी सॉस विल बी अ लिटिल स्पाइसी एंड स्वीट। स्वीट एंड सावर। स्वीट एंड सावर, ओके, Yeah. इंटरेस्टिंग। फिश फ्राई हो चुकी है, हम मूव कर रहे हैं सॉस की तरफ। सॉस विल बी स्वीट एंड सावर लाइक शेफ टोल्ड अस। द हाई फ्लेम, जी हाँ, वेरी हाई फ्लेम। वेरी सिंपल, ओके, वेरी सिंपल। पहले हम लेंगे चिकन स्टॉक। oh my god, Chinese is always cooked with a lot of high flame and this is just, इसके अराउंड भी कुछ सीमेंट का लगा हुआ है ना बर्नर पे? जी हाँ, Yeah. ये मेटल है। It's so scary being here. अच्छा, ये क्या डाला है हमने? ये टोमेटो केचप हमने डाला इसमें। टोमेटो केचप? जी हाँ, ओके। टोमेटो केचप। यहाँ पे रेस्टोरेंट पे बनता है टोमेटो केचप या फिर स्टोर बॉट? नहीं, ये मार्केट से परचेज करते हैं। इसमें Okay. डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ओके, सॉल्ट। अब हमने डाल दिया इसके अंदर टोमेटो केचप एंड वी आर मूविंग ऑन सॉल्ट टू एंड सॉल्ट, अभी थोड़ी सी शुगर डालेंगे इसमें। शुगर। रेसिपी पूरी डाल देते हैं, उसके बाद इसको पकाएंगे। थोड़ा सा ये चिकन पाउडर इतना था, ठीक ओके। है। वैसे हमने देखा कि सेचुआन में और चाइनीज कुकिंग में हमेशा ये लेडल ही यूज होता है। हाँ, लिटिल ही होता है क्योंकि ये उनकी एक स्पेशल, हमने अभी इसमें डाला वेनिगर्स। Okay. ठीक है जी, अब इसको, मिक्स करेंगे। हाँ, ये हमारा स्टाइल होता है ऐसे करके केक करने का, पता चलता है स्वीट एंड सावर है कि नहीं। थोड़ी शुगर कम है, थोड़ी शुगर और डाल दो। ऑलराइट। या ये क्या था? विनेगर। वेनिगर्स। ओके। ओके, अब इसको हम थिक करेंगे सिंपल वे। कॉर्नफ्लावर स्लरी। अब ये हो गई थिक, ठीक है। थोड़ी और कर देते हैं। ये हमने अभी कॉर्नफ्लोर डाला, ठीक है जी। साइड पे अब पहले जो है हम इसको, फिश को जो है ये सॉस, जी हाँ, जाए करीना इसको, ये घूमती रहेगी ऐसे, इस पे ये सॉस पिलानी है। Looks so yummy. Very nice. और इसका बोल यहाँ पे होने का मकसद है? मकसद ये फॉर्चून है, या बाद में पता चलेगा बॉल क्यों है। Okay. हम्म? We'll find अब out in इसको हम tasting. फिलहाल इस पे रखते हैं ऐसे, ताकि आप जरा थोड़ा सा देख लें। और हम ये इसमें डालेंगे ये चीज़ है, Okay. इसमें ये पाइनएप्पल है, ये पेपर्स हैं, Okay. रेड एंड येलो एंड द ग्रीन ऑनियन शैलोट्स, Okay. ठीक है जी। और थोड़ा सा Very nice. ये इस, Thank God, that was getting very scary. ओके। तो ये Yum. ऐसे आएगा। Very nice. ओके, तो अब ये जादू जो मैंने रखा है बाउल का, वो आपको दिखाता हूँ कि जादू क्या है। Let's see. हाँ, 1 2 और ये 3, मैंने गेस कर लिया था पहले. क्योंकि इसके बगैर फिश कंप्लीट नहीं है। Of वो complete course. हो- This lovely dish is made by Chef Raja Abdullah and it looks so nice. Thank you so much, Chef. You're welcome. अब मोस्ट वेलकम। एक मेरा मैसेज है हमारे नाज़रीन देखने वालों को, हमारे पास आए यूशी रेस्टोरेंट में, और इस दिन में भी होता है मगर शाम में ज़रा क्राउड ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे पास
अभी शादियों का जैसे सीज़न चल रहा है, उसके लिए हमारे पास बेहतरीन बैंक्वेट हॉल और बेहतरीन एक्सपर्ट शेफ जो है आप लोगों के लिए खाना बनाते हैं। और लातरास में हमारे पास लगा होता है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी एंड डिनर के लिए सुबह 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हमारा रेस्टोरेंट ओपन होता है। अगर आप बारबेक्यू खाना चाहते हैं तो हमारे पूल पे आना मत भूलिएगा। Yes, guys, please come here. The food already looks so lovely. अब हम चलेंगे to learn about another dish Yes. जो आप बताएंगे हमें. Please उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. हाँ, वो है हमारा सिचुआन प्रॉन, चिली प्रॉन, सिचुआन चिली प्रॉन। एक्चुअली इसमें चाइनीज़ फूड में बटर यूज़ नहीं होता, मगर हम उसमें बटर यूज़ करेंगे और वो देखेंगे कितना टेस्टी बनता है। An elevated Sichuan dish. Let's go to it. Usually जब हम hotels में आते हैं and we come towards this industry, हमेशा एक इंसान होता है who's looking after all of the section of food and beverages. हम बात करेंगे सर नाजिम इकबाल से, who is the director of food and beverages here at Ramada Plaza. अस्सलाम वालेकुम sir, how are you doing? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, wonderful, very nice. Please हमें थोड़ा बताएं, what does director of food and beverages do over here? Well, as far as my job responsibility is concerned, me myself look after the all food and beverage operations, अच्छा. which includes we used to oversee all outlets operations and banquets and conference and weddings and everything. It's our daily responsibility, and the main goal of the food and beverage operation is to satisfaction our customer. We have different type of client, like you see, we have French and Britisher and Pakistanis and Chinese. तो इन तमाम लोगों का ख्याल रखना और इन तमाम लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना ये हमारी अवलीन तरजीह है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मी माई सेल्फ व्हेन आई गो टू होम आई फील माई सेल्फ वेरी मच सेटिस्फाइड बिकॉज the comments and the feedback which I got every day and my boss general manager, it is very much satisfactory. और हमारे क्लाइंट के लिए जो हमारा कस्टमर है मेनली फोकस फूड पे करते हैं, आपको पता है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट फूड एंड बेवरेज है और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो मिलियंस ऑफ फूड जो है वो डेली डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी जो लोगों को सर्व करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर पाकिस्तान। तो सिमिलरली हमारा भी रोल बिल्कुल उसी तरह का है। ऑल ओवर पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बताएं, बिकॉज रमादा है इंटरनेशनल, यस इट्स अ इंटरनेशनल चेन। सो जैसा आप बात करें, जैसे फ्रेंच आते हैं एंड पीपल फ्रॉम इंटरनेशनल कंट्रीज कम, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द फूड? वो क्या डिफरेंट चाहते हैं, या फिर लाइक हाउ डू दे कम टू यू रिगार्डिंग द फूड? टेल अस दैट अबाउट दैट अ लिटिल। They cannot eat spicy food. The main concern basically the food. Rest of the thing, beverages and stay and it's always same everywhere. The main concern of these foreigners are spicy food and everything. So you know that we have a wonderful chef Raja Abdullah and his team, and they have different type of section chefs. वो different foods के जो हैं वो उस आर्ट को जानते हैं, उसको बनाना जानते हैं। और हमारे पास फ्रेंच कुजीन की भी बहुत बड़ी वैरायटी है, कॉन्टिनेंटल की भी है, चाइनीज़ की भी है। सो वी आई मीन माई सेल्फ, मैं आई मीट माई सेल्फ विद द कस्टमर, जो उनकी नीड्स एंड वांट्स होती हैं हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी काफ़ी अच्छी यू कैन से जो रिजल्ट हैं उसके बहुत अच्छे हैं। सो हाउ, मुझे थोड़ा एक बताएं ताकि मेरी भी एक अंडरस्टैंडिंग हो, हाउ डज द डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस गेट इन लाइन विद द शेफ्स ओवर हियर? आप लोग के अंदर कौन सी व्हाट अंडरस्टैंडिंग डू यू गाइस हैव टू क्रिएट कि जाके आप आगे उस रेस्टोरेंट के अंदर प्रेजेंट करें? वेल यू सी, आई मीन फूड एंड बेवरेज का ताल्लुक किचन से तो ऐसा है जैसे वो कहते हैं ना लाजुम मुलजुम, तो वो वाला सिलसिला है। और जाहिर है कि फूड एंड बेवरेज जो प्रिपरेशन किचन में होती है उसको सर्व करना और उसकी नॉलेज फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टाफ को भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा बड़ा मेन पार्ट है किचन से सारी कोलैबोरेशन और मेन्यू प्लानिंग, इस हवाले से ये तमाम मेन्यू डिज़ाइनिंग और मेन्यू इंजीनियरिंग ये मैं शेफ़ हम मिलके बैठ के करते हैं इसको। और ये बड़ा डिफरेंट चैनल है, लेकिन बड़ा मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक पैशन भी है ये। अच्छा। तो मुझे इससे फूड नॉलेज में भी इजाफा होता है क्योंकि मी माई सेल्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन किचन। तो ये हमारा डेली ऑपरेशन होता है इस तरह। बिल्कुल। तो बड़े बैंक्वेट्स और इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी हमारी जो फूड की प्लानिंग है, खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड की प्लानिंग है, बल्कि जो फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन है ये ऐसा है कि ये आपकी इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आपकी फूड की परचेजिंग है, बिल्कुल, और फिर उसके बाद उसकी स्टोरिंग है, फिर उसकी इशुएंस है, फिर उसकी प्रिपरेशन है, एंड देन फिर उसके बाद उसकी सेलिंग है।
तो ये जो 6-7 कंपोनेंट हैं ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं आपके फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अंदर। देयर इज अ फुल प्लान टू इट कि किस तरह से हम लोग इसको लेके जाएंगे एंड मेक द चेन गो अराउंड। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप बताएं आपका फेवरेट रेस्टोरेंट इन रमादा कौन सा है? ओह यस, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं अगर किसी को ग्रेड करूं तो फिर वो मेरे लिए दूसरा रेस्टोरेंट भी वैसा ही है, लेकिन मैं मी माई सेल्फ like barbecue restaurant, okay, which is at the poolside, and it is wonderful restaurant. I mean, you can see the food is cooking in front of the guest. All right. You have different variety of foods, continental, Pakistani, और कुछ हमारे टर्किश गेस्ट यहाँ पे ठहरे में, हमने उनके लिए भी कुछ मेन्यू डेवलप किया है। अच्छा, सेपरेटली फॉर देम? सेपरेटली फॉर देम। अमेजिंग। सो हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोई क्लाइंट जो है वो अनसेटिस्फाइड ना हो, हम कोशिश करते हैं कि हर तरीके से उसको सेटिस्फाई करें। तो कुछ गेस्ट हैं हमारे पास टर्किश और बड़े रेगुलर क्लाइंट हैं जो 3 से 4 साल से यहाँ पे ठहरे हैं, तो उनके लिए भी हमने एक सर्टेन मेन्यू डिज़ाइन किया है और वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि आपने मेन्यू से हट के कोई ऐसी चीज़ प्लान की हमारे लिए जो बहुत अच्छी है। तो उसकी वजह से उन्होंने अपने दूसरे होटलों से जो टर्किश गेस्ट थे उनको यहाँ बुलवाया है कि यहाँ हमारी नीड्स एंड वांट्स जो है वो पूरी होती हैं। अच्छा, जब आपने पैशन बोला, आपका पैशन टुवर्ड्स कुकिंग है या फिर द होटल इंडस्ट्री? डू यू लाइक टू कुक योरसेल्फ? सॉरी टू कट यू, मेनली मैंने स्टार्ट जो है वो किचन से ही किया था और लेकिन ये है कि ज़्यादा अरसा नहीं किया, मैंने 1.5 साल किचन से स्टार्ट किया था। आई नो कॉन्टिनेंटल कुकिंग एंड पाकिस्तानी कुकिंग वेरी मच। और जो मॉकटेल आपने अभी पिया है वो भी मेरे हाथ का बना हुआ है। ये अभी पोमेग्रेनेट हमारा फेस्टिवल प्रमोशन चल रहा है। अच्छा। तो उसमें जो 6-7 मॉकटेल्स हैं वो मैंने डिज़ाइन किए हैं। Thank you so much, Sir Nazim. It was very nice to talk to you. It's my pleasure. Thank you so much. हम सीखेंगे Sichuan chili prawn with Chef Mohammad Awais, जो यहाँ के Chinese chef हैं, and he's going to teach us how to make these amazing prawns. Please, chef, हमें बताएं कि किस तरह से start करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे जम्बो प्रॉन। ठीक है। जम्बो प्रॉन के लिए यहाँ पे हमने जम्बो प्रॉन बिल्कुल इसको साफ करके रखा और इसके बाद हम इसकी करेंगे सबसे पहले मैरिनेशन। ओके। इसकी मैरिनेशन हम पहले करेंगे सबसे पहले एक सेकंड, एक प्रॉन उठा के दिखा सकते हैं क्योंकि ये बटरफ्लाई हुए हुए हैं शायद, है ना? ये प्रॉन हमने इसको बिल्कुल ओपन किया है। ओके। बिल्कुल शेल में आते हैं, इसको शेल निकालते हैं, उसको सेंटर से कट करके उसको साफ करके हम लोग उसको बटर की तरह खोल देते हैं। ओके, लुक्स वेरी। इसके बाद हम लोग इसको अब मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर। ओके। फिर हम डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। राइट। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। और इसके साथ सॉस भी होगा क्या? जी, इसके साथ सॉस भी होगा। ओके। अच्छा, और कॉर्नफ्लावर मैरिनेशन में डालने का क्या मकसद होता है पहले से? कॉर्नफ्लावर मैरिनेशन के मकसद होता है कि प्रॉन आपके लिए ना अच्छे आ जाते हैं बिल्कुल। इनका ये बैटर बन जाता है। बैटर भी बन जाता है और प्रॉन आपके खिल के भी आते हैं अच्छे। ओके। उसके अंदर हमें थोड़ा सा एग ऐड करेंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ऑलराइट जी, यू नो द किचन्स आप देखते हैं होटल्स में एज अपोज टू रेस्टोरेंट्स, दे आर ऑलवेज सो इंटरेस्टिंग। होटल्स में हमेशा एक बहुत level का seasonings and they've put all these things over there to accommodate so many customers for their room service and all of that. And then when you go into restaurants, if you've seen in our other shows, वहाँ पे हमेशा for one person for each serving, they cook everything and they cut everything with the helpers at that time. So it's always very interesting to go into their kitchens and see what's so different and how they manage. अच्छा, ये हो गया है बिल्कुल मैरिनेशन कर दी, ये बिल्कुल मैरिनेशन परफेक्ट हो गई। अब हम इसको जाएंगे इसको फ्राई करने। हम आ चुके हैं फ्राइंग की तरफ and of course it's going to be deep fried again. So let's अब हम इसको करेंगे फ्राई। Very nice. और इसको कितनी मिनट्स में कुक हो जाएगा क्योंकि प्रॉन में इतना इसको हम 1 मिनट तक करेंगे। ओके। बहुत इनफ है, वरना वो प्रॉन जो है ना बिल्कुल हार्ड हो जाता है। ठीक है। ऑलराइट। ये कलर देखा। अमेजिंग। अच्छा, यूजुअली हम लोग घर पे ना एक प्रॉन को लेके कॉर्नफ्लावर एग के अंदर डाल के फिर कॉर्नफ्लावर के अंदर, दिस वाज सच अ इजी मेथड, जस्ट टेक ऑल द प्रॉन्स, उसके अंदर एग डालो और कॉर्नफ्लावर डालो, वही बैटर आ गया। लुक्स लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर। ठीक है, हमारे जंबो प्रॉन रेडी हुए हैं फ्राई करके। इसको हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे कुकिंग की तरफ। ओके, सॉस बनेगा इस पे जी। ओके, हमारे प्रॉन्स हो चुके हैं फ्राई और अब हम जाएंगे टू द स्टर फ्राई। क्या होगा ये स्टर फ्राइड होगा और बिल्कुल ग्लेजीपन आएगा इसके अंदर, ग्लेजी की तरह हम बिल्कुल निकालेंगे प्रॉन को बिल्कुल। अब आप देखते रहिएगा हमारे से इसको किस तरीके से इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ऑलराइट, दिस इज नॉट गोना बी अ सॉस, इट्स गोइंग टू बी ग्लेज, बट प्लीज आप दिस इज ऑयल डालेंगे।
season the pan is what they say. Okay. हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, चॉप Okay. गार्लिक। चॉप गार्लिक को लाइट बिल्कुल ब्राउन करेंगे। Okay. उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिचुआन पेपर। ये सिचुआन पेपर है। ये मैं ऐसा अगर खाऊंगी मुझे मिर्ची लगेगी? नहीं, नहीं? आपको हल्की मिर्ची नहीं लगेंगे, बिल्कुल ठंडा पानी आपको बाद में लगेगा। It's a fun. It's like a coriander seed सिचुआन but का spicy. टेस्ट हाँ. आपको आ रहा होगा। इसको हम थोड़ा क्रश कर लेंगे इसके अंदर। Okay. इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बटर। अच्छा, जैसे हमें शेफ अब्दुल्ला ने बताया था कि इन सिचुआन कुकिंग बटर यूज नहीं होता बिकॉज दे आर एलिवेटिंग द डिश अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स हियर, दे आर एडिंग बटर टू इट। यम। I didn't like that taste. Please डालें। इसके डालेंगे चिली, थाई चिली हम डालेंगे इसके अंदर। फिर हम इसको थोड़ा सौते करेंगे। फिर हम इसके अंदर प्रॉन ऐड कर देंगे। फिर हम इसको थोड़ा सौते करके ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा सॉल्ट, हल्का सा चिकन पाउडर। वाओ, क्या बात है। असल में मैं आपको ये बताना चलूँ कि दुनिया भर में जो चाइनीज शेफ होते हैं ना, वो ज़रा क्वाइट होते हैं, चुपचाप अपने लगे रहते हैं, काम बोलना बहुत कम आता है। हम एशियन थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते हैं, पाकिस्तानी वगैरह। ये चाइनीज़ हमेशा जहाँ पे भी होंगे सिर्फ काम ज़्यादा करेंगे, बोलेंगे कम। और हम पता है कि काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। बहरहाल जोकिंग। और ये स्टर फ्राइड प्रॉन, सिचुआन स्टर फ्राइड प्रॉन है ये। और ये थोड़ी सी ग्लेजिंग इसने की है। शेफ अब्दुल्ला, ये तो आपकी डिश होगी ना, आपकी बनाई हुई Of रेसिपी course, है। of course. इसलिए शेफ राजा could not stay away from the kitchen. He had to come in and tell us how it's done. बताएं, इसका जो बटर का जो I can smell the butter सबसे ज़्यादा है इसमें। तो इसमें बटर डालने का और सिचुआन से डाइवर्ट करने का was it to accommodate the guests here? आजकल आपको पता है ट्रेंड जो चल रहा है वो चल रहा है फ्यूजन का। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सीसवीड ऑयल, Sesame oil. सेसमी ऑयल। हम निकालेंगे इसके अंदर। You can smell all the spices just going in through this kitchen in your nose, in your eyes. You know it's going to be spicy. अभी ये करेंगे dish out इसको. Wow, look at that. और ये भी राइस के साथ सर्व होगा जी। अच्छा, the Chinese plating is always so simple. I love how it's just about the food and not the plating. ये हमारा यूशी का मैजिक। Very nice. Super excited to try. It smells so good. हमारे लिए दो बहुत amazing dishes बनाई हैं दोनों chefs ने. Thank you so much, Chef Raja. Thank you so much, Chef Oves. आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you जो so आप much. लोग हमारे पास आए। Very excited to try them. So let's go. Here at Yushi at Ramada Plaza, we got to meet the two chefs who made us these amazing dishes. I'm very excited to try them. और यहाँ की मज़े की बात ये है कि this is like an open front. You can see the chalets right across in the garden. The kitchen is live. You can see through the windows. You can see them cook. So I'm super excited to try. Let's start with the starters actually. I'm gonna put my napkin. और हम try करेंगे उनकी Szechuan chili prawns. Both are Szechuan dishes. So let's see. I'm gonna use my chopsticks for the prawns. And look how pretty their chopsticks are. I think they're reusable, which is also very good in that sense. Let's go try it. More than the glaze on the sauce, I love कि ये इतने मज़ेदार cook हुए हैं. The cook on it is just perfect tender. I think क्योंकि उनका butterfly हुआ था, it's just so good.
It's not very spicily overpowering. Look at that. So yummy. And it's just a good bite on its own. I love this because the jumbo prawns are just so succulent, so nice. I mean, बहुत मजे का कुक आया हुआ है इस पे और completely battered नहीं है क्योंकि इसमें जो corn flour डाला था, just giving that right amount of crisp, not completely. You can see it dripping with flavor. And the Thai chili, I just got that. Oh, this was really good. This is also like, I'm not going to try it with the rice because I do like prawn on its own. क्योंकि हमारे पास इस dish में भी rice है, तो मैं उसको as a proper meal, I'm using this as a starter. This has been a fun thing. We'll get back to this again because I'm going to eat the whole thing. Acha, I'm going to move on to this prawn again. I mean, I've given the review, but it's so yummy that I want to get back to it. But I really want to try this crispy battered fish. इतनी मजे की लग रही है ये, like you know how we जिस तरह काटा था and the crisp on it looks so yummy. Thank you. मैंने ये दूसरी drink order की थी. They were so kind enough to give me another one. This is called the Pomegranate Sunset. And I'm just excited to try it. It'll be like a nice little palate cleanser. So I'm just gonna try that because I had the prawns. And it does taste like pomegranate sunset. This is what I love about Chinese cooking. So little and it turns out to be so amazing. It's so good in its simplicity. And I actually love these prawns as a starter, as a dish. They हमेशा rice देंगे अपनी dishes के साथ, so it becomes a whole meal. So I love that concept. हम move करेंगे towards the square fish. मुझे अभी तक concept नहीं समझ आया why it's called square fish, but I'm understanding that it has these amazing cuts on it जो completely deep battered fried हुई हुई हैं. I'm just gonna take some out in my plate. I'm gonna get a fun juicy part. So let's get that in. Look at that. So saucy, so yummy. I'm gonna get some more sauce. Gonna put that in my plate. I'll also take some rice with it to try just a little bit because it is not Chinese food अगर आप rice के साथ ना खाएं. Okay. All these utensils on my plate. I'm gonna try the fish on its own first because I'm really excited to try its batter. Okay, so this is the square fish. I like how एक cut को cover किया हुआ batter के साथ और उसके अंदर सारा sauce has just like absorbed in it. So excited to try. That is the yummiest fish I've had. I'm not even joking. इतना different concept है. I know हमने हमेशा battered fried fish खाई हुई है, मगर इसका concept और इसका taste is so different. You guys have to try their square fish. It's just the best. And I love how मैं अपने हाथों से ही उठा के दिखा देती हूँ आपको क्योंकि I can't use the utensils. Look at that. There is the crispiness all inside it. What fish gives you that? I know I'm getting myself messy, but you guys, this is actually really good. And like I'm just gonna try eating it out like that. Like why not? Why not? Do it like that. I'm gonna end this food tasting with a palate cleanser. Have my pomegranate sunset mocktail, which of course is divine. I want to thank all the people at Yushi and Ramada Plaza for having us here, for teaching us these lovely recipes. जो हम I don't think knew that existed, especially the square fish. It was so good, you guys. Thank you so much for watching Chef Special. We'll catch you next time in another restaurant with the same old me. See you guys later. Bye bye.